यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिन्हें देखने के बाद नए नए कंटेंट क्रिएटर्स का जन्म होता है। ये वीडियो कुछ ऐसा ही है। आज ये वीडियो देखने के बाद मैं कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ। वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, सबसे तुच्छ रिएक्शन वीडियोस, बेस्ट रिएक्शन वीडियोस। कैरी मिनाटी, तन्मय भट्ट, कौन बेस्ट रिएक्शन वीडियोस यार। अभी तक चैनल का नाम सोचा नहीं, बट रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे चैनल का नाम। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so it's the 100 crore portfolio. Let's see. Oh my God. बहुत पैसे हैं भाई, 100 करोड़ काश मिल जाए। exact steps you need to take in order to build a 100 crore portfolio. A natural question will come. एक नहीं, 10 नहीं, 100 करोड़। 100 करोड़। सुन लो गरीबों, क्या गरीब बोला मैं तो खुद ही। कि यार आप बैठ के ज्ञान दे रहे हो कि आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो ऐसे ही आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नंबर्स बट आई हैव बीन एबल टू बिल्ड अ फेयरली बिग पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल टेक अ लुक एट दिस इज माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो व्हिच हैज बीन डूइंग फेयरली वेल 10 करोड़, आप जीत गए हैं 10 करोड़। यार 10 करोड़ के बाद यूट्यूब वीडियो कौन बनाता है? अरे जनता जवाब चाहती है। 10 करोड़ के बाद यूट्यूब वीडियो कौन बनाता है? प्लीज घर पे बैठिए, आराम कीजिए, मजे कीजिए यार। 10 करोड़ चला है नहीं, 10 करोड़ चलो। यूट्यूब वीडियो बना के लोग 10 करोड़ कमा दिए, 10 करोड़ कमाने के बाद यूट्यूब वीडियो बनाएगा? बहुत नॉट फेयर, नॉट फेयर। यूट्यूब प्लीज रिपोर्ट दिस चैनल, हैविंग टू मच मनी, नॉट गुड। इट्स डिसेंट साइज ऑन टॉप ऑफ दिस यार मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो इसका डबल ट्रिपल था आराम से मान ही लो खत्म भाई, अभी तो रिपोर्ट क्या, जेल में डालो। 20-30 करोड़ के बाद यूट्यूब वीडियो कौन बनाता है? right? It is because I am mostly invested in equities for years. On top of this, I have a real estate portfolio. So real estate, मैंने multiple real estates खरीदी हुई हैं. These are some of my real estate. So if you analyze and add up all this together, I would not reveal the 1000 करोड़, 1000 करोड़ उससे कम आपके पास है ही नहीं। numbers, but I would have done ये fairly 100 करोड़ okay. So झूठ है, ये झूठ है, ये 1000 करोड़ बना है। बता नहीं रहे सर, बहुत डाउन टू अर्थ सर है। that's what I would leave at. This is not a boasting video. There are key lessons that पोस्टिंग ना बोल के भी एक पोस्टिंग वीडियो ही है। डोंट टेक इट अदरवाइज। I want to share. One of the key lessons is that you need to invest across asset class in order to take advantages of good deal. कई बार हम सोचते हैं कि what हमें सिर्फ equity investor बनना चाहिए या real estate investor बनना चाहिए या फिर gold ही खरीदते रहना चाहिए या सिर्फ bitcoin मीम कॉइन्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट। खरीदते रहना चाहिए. No, each of these asset class serve a purpose. I'm going to honestly systematically help you understand extremely important video on wealth building. These are all practical insights. ये किताबी बातें नहीं है. I have put in crores and crores of my money into equities, into mutual funds, into bunch of different asset classes like real estate, cryptos, etc. So उससे whatever learnings I have been able to glean, I'm going to share it in one single video. I hope that you like this video. Please press the like button आज हम सब अमीर बनने वाले। कम ऑन, so that these type लेट्स of गो। fundamentally researched videos reach out to more people. Yes, if research nahi hai, these are practical experiences. So let's begin without wasting further time, and there are 9 or 10 steps that I will take you through. So step 1 of building a 100 crore portfolio is that you need to understand पहले आपके पास 100 करोड़ होने चाहिए, फिर उसे लेके इन्वेस्ट कीजिए। 10 साल में एफडी भी 100 का 200 दे देता है। investing across different asset classes. अब different asset classes कौन कौन सी होती हैं? For example, there is real estate, which is an asset class. Equity or stocks is an asset class. Similarly, you have gold, Bitcoin, other cryptocurrencies as an asset class. Maybe some of it you will like, some of it you might not like, वगैरह वगैरह. But a key point that you need to understand is that there is a cycle associated with each of these asset classes. For example, आप में से कईयों ने सुना होगा कि यार you know what, real estate में जब invest करते हैं, it is fairly a long term investing. Why? Because real estate goes through a boom and burst cycle. जब growth हो रही होती है तो growth happens for 5 5 10 10 years. जब burst cycle चल रही होती है तो it happens for 5 5 10 10 years. So उसमें cycle सर अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हूँ और जमीन ही हड़प हो जाए, उसे क्या बोलोगे? बूम या बस्ट साइकिल? गुड पॉइंट है।
कहलाती है, that's one. Similarly there are business cycles, economy cycles. Similarly equity, maybe there is cycles, there is sector rotation. So what I'm simply trying to do is that, for example, मान के चलो कि equity में there is an up cycle going, up cycle going. So up cycle का मतलब ये, right? ये अभी हम यहाँ पे हैं. For example, market right now, take a look at this graph, you will see that the market is almost at its all time high. So is this a buyer's market or a seller's market when it comes to equities? So I would say कि यार buyer's market तो definitely नहीं है. ऐसा मार्केट नहीं है कि जहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए बिना बिल्कुल आंख बंद करके लगाते चले जाओ. नो. ये एक चीज है जो मैं हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का नहीं है, जो हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के चैनल पे पाता हूँ कि मार्केट अप में चल रहा होगा, ये लोग आगे बोलेंगे मार्केट बहुत अप हो गया है, अब बेच दो। रखा नहीं है, अब इक्विटी में कुछ रखा नहीं है। अरे मेरे भाई, इतना जनरलाइज करके मतलब क्या है इस चीज का? अगर आपको लग रहा है ये अप है, अप क्यों है? आप बेंचमार्क बोल रहे हो कि ये लेवल कभी आया नहीं है, या फिर आप वैल्यूएशन के हिसाब से बोल रहे हो? बट अगर हम अभी भी इक्विटी में देखें, निफ्टी, ओके ठीक है, निफ्टी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, हो सकता थोड़ा बहुत, मैं तो रीजनेबल पे वैल्यूएशन हूँ। बट अगर बाकी का सारा देखें कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, वहां सब में तो अभी पूरा करेक्शन चल रहा था, करेक्शन में कहाँ चल रहा था। तो ये जाके अगर बोले कि मैं निफ्टी 50 में नहीं, मैं नेक्स्ट 50 में डालूं, तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास आप कैसे बोल सकते हो जनरलाइज की ये वो अप हो गया, अब तो निकल जाओ इक्विटी से, अब तो कुछ रखा नहीं है, अब तो सब सब डूबने वाले हैं, अप गया है तो डाउन जाएगा। समझ रहे हो? ये बेसिक जैसा चीज है ना कि अप चला गया तो डाउन जाएगा। अगर सोचो एक इंसान इक्विटी इन्वेस्टिंग में बेंचमार्क इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है, हो सकता है उसके लिए बायस मार्केट हो। ये जनरलाइज स्टेटमेंट बोल देना कि अभी आप चल रहा है तो इक्विटी में मत डालो, अभी मत डालो, ये आई डोंट गेट इट। आप ओके, आप वैल्यूएशन के बारे में बोल सकते हो कि हाँ अभी वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है, वैल्यूएशन थोड़ा करेक्ट होने दीजिए फिर हम खरीदेंगे। नहीं, ये लोग वैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि जब मार्केट का ऐसे 10-20% ऊपर से नीचे आ जाएगा तब अंडर वैल्यू हो गया। I don't know, man, ये सब ऐसा बोल के भी क्यों? they are more experienced than me, they are more subscriber than me, they know more. I don't. I'm just a random guy giving his thoughts on this. Ideally you should buy in a down cycle, right? On this. हाँ, ये समझ गया, डाउन साइकिल में बाय करो, ये सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर यही बोलते रहते हैं, डाउन साइकिल में बाय करो, अप साइकिल में बाय करो, अप साइकिल में सेल करो। एसेट क्लास. सिमिलरली आप ये मान के चलो कि इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इक्विटी मार्केट एंड रियल एस्टेट मार्केट, अगर मान के चलो कि इक्विटी मार्केट में अप साइकिल चल रही है बट इन रियल एस्टेट इट इज डाउन साइकिल विच इज देयर, सो यहाँ पे रियल एस्टेट है, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड रोटेट योर कैपिटल फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? दिस इज फेयरली बेसिक कॉमन सेंस. बट बट एक बात बताइए कि आपका जो चैनल है वो कौन देख रहा है? इंडियन लोग ही देख रहे हैं ना, बहुत एफ्लुएंट क्लास देख रहे हैं, मना नहीं कर, बट देख रहे हैं। जो इंडिया इंडिया है वो मोस्टली मिडिल इनकम नेशन है, इतना ज्यादा हमारा हाई इनकम नहीं है, हमारा पर कैपिटा जीडीपी 1.5 लाख रुपए है सालाना। तो आप जब ये बोल देते हो कि हाँ ठीक है, इक्विटी अप है तो इक्विटी से निकालो, रियल एस्टेट डाउन है रियल एस्टेट में डालो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट का वही है कि रियल एस्टेट एक बहुत हाई टिकट आइटम है। जब तक हमारे पास बहुत पैसा नहीं है तब तक हम जाके इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर भी लेट्स जस्ट से, अगर भी हमें लाइक हम थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, 10, 12, 15, 20 लाख अराउंड बना लेते हैं, तब भी एक प्रॉब्लम है जो रियल एस्टेट का, वो है कि वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इतना सस्ता क्यों है? वो अगर सस्ता है वो महंगा कैसे होगा? समझ रहे हो? और मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है इतना सस्ता रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो पता नहीं, मतलब लाइक रियल एस्टेट में अगर लाइक मेरे पास जब तक पैसे नहीं बनेंगे तो मैं रियल एस्टेट खरीदूंगा नहीं, क्यों? अच्छा रियल एस्टेट में कभी नहीं पाने वाला 10, 15, 20 लाख में, ऐसे तो मतलब जो प्रॉब्लम है रियल एस्टेट। स्टिल सर के पास डिग्री है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, तेरे पास क्या है? कुछ नहीं। सर ज्यादा जानते हैं, मान लेंगे।
will you be able to do if you don't understand real estate or equity market or bond market or crypto market वगैरह वगैरह? People keep on debating. लोगों का काम है बस बकवास करना फालतू की, राइट? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ होगा नहीं, बट बेकार की बात है कि यार यू नो व्हाट, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं बनता, या इक्विटी में रिटर्न नहीं बनता, या गोल्ड में रिटर्न नहीं बनता। भाई साहब सब चीजों में बनता है इफ यू नो हाउ टू मेक रिटर्न्स। अगेन लेट मी गो टू दिस चार्ट दैट लाइक रिटर्न्स इन द सेंस व्हाट? लाइक अगर आप बोलोगे कि निफ्टी 50 बेंचमार्क से रियल एस्टेट ने ज्यादा परफॉर्म किया है, लाइक इफ रियल एस्टेट थिंग, then you are wrong there. Like Nifty 50 has always beaten real estate here. So पैसा भी बोल के कि हाँ रियल एस्टेट में पैसा बनता है, इसमें पैसा बनता है, नहीं पैसा बनता है, मना नहीं करूंगा, पैसा बनता है। बट पैसा उन लोगों का बनता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं। रियल एस्टेट बहुत ही हाईली स्पेशलिस्ट लोगों के लिए है। आप ऐसे थोड़ी कल कल आप ऐसे हमारी तरह कंप्यूटर पे बैठे दो तीन चीजें सीख ली, दो तीन वीडियो देख लिया और इक्विटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लिया, बट वो चीज आप रियल एस्टेट में नहीं कर सकते। बहुत सारे उसके जो बोलते हैं ना बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, फैंसी टर्म, बैरियर्स टू एंट्री, मोट्स। if you are doing equity investing, आप भर भर के equity bulk investing यहाँ पे कर रहे हो, the chances are that you are not going to make more than 12% return on equity even on a long term basis. Why? Because the last 20-year CAGR, compounded annual growth rate of the equity segment, is roughly 12% on Nifty, 12.5% के आसपास होता है। तो या तो आप बहुत ही विरले इंसान हो कि आप ना market is giving you 12 but you are somehow able to extract like 20% returns, so you have to go आप 20% कर सकते हो इफ यू पिक स्टॉक्स इंडिविजुअली, कर सकते हो 20%, 30-40 में कर सकते हो। across asset classes and you will only go बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट अ फैक्ट। लोगों ने बनाया है, सो मैं कोई नहीं हूँ, लोगों ने बनाया है, मैं नहीं बोलूंगा आप बना सकते हो। अब ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। चलो across asset classes if you understand the basics of investing. ये सुनो, ये इन्वेस्टिंग अक्रॉस एसेट क्लासेस करने से ना नहीं बनता भाई। अभी बोल दे रहा हूँ, मैं फिर इसे जाके इलेबोरेट करूंगा, बट ये इन्वेस्टिंग अक्रॉस एसेट नहीं बनता रिटर्न्स अच्छे। अब बोलूंगा बोलूंगा across real estate, across equities, across bonds, across cryptos. अगर आपको नहीं आता, आप बैठ के सिर्फ बातें बनाते रहोगे ट्विटर पे, यू विल कीप ऑन फाइटिंग वॉर्स कि ट्रेडिंग बेस्ट होती है, एफएनओ बेस्ट होता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग बेस्ट होती है, रियल एस्टेट बेस्ट होती है। भाई कुछ नहीं बेस्ट होता। बेस्ट इज व्हेन यू कैन बाय समथिंग लो एंड सेल और मेक मनी। something high. That is what the entire point of investing is. So the key takeaway from point number one is that you should learn all different forms of investing. There are basically 3 different types of investing. ये भी मैं थोड़ा सा आपको clarify कर देता हूँ क्योंकि आजकल तो everyone has become like a financial influencer. लाइक मी। The first type of investing is called as personal finance slash सर इज डायरेक्टली टॉकिंग टू मी, आई नो। सर knows of my existence and I'm making this video। मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि यार बेसिकली आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, एफडी में कितना पैसा डालना चाहिए, इक्विटी डेट में क्या स्प्लिट होना है, यार बच्चों वाली चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट एज इफ दैट इफ यू स्टडी दिस बेसिक बेसिक थिंग्स कि हाँ आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, भाई होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जस्ट बिकॉज यू नो इट यू विल नॉट बिकम रिच, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिक मनी मैनेजमेंट। इट इज कॉमन सेंस। ये तो क्लास 5-6 के बच्चों को भी चीज़ पता होनी चाहिए। इट्स नॉट एज इफ दैट यू विल बिकम रिच बाय लर्निंग अबाउट मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और ज्वाइनिंग लाइक पर्सनल फाइनेंस कोर्स एंड ऑल दैट स्टफ। टोटली एग्री। पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर ना ये दूसरे मतलब लाइक सबसे वर्स्ट होते हैं। लाइक इन्होंने पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर्स ने इन 4 साल में इतना सारा मतलब इतना सारा पैसा कमाया है। आई एम वेरी जेलस कि इतना इतना कम जानते हुए भी आप इतना पैसा कैसे कमा सकते हो। Like literally man, go and see all the Instagram influencers who became like they, वो लोग जाके स्टॉक्स पे नहीं बोलेंगे, वो जाके पर्सनल फाइनेंस पे बोलेंगे। पर्सनल फाइनेंस पे बोलेंगे ऐसे ऐसी चीजें जो ये सोचिए वो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं पर्सनल फाइनेंस पे बताता हूँ। लाइक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी मैंने पहले बताया 1.5 लाख रुपए साल का। ये सारा पर्सनल फाइनेंस कहाँ से करूं? पर्सनल फाइनेंस कर भी लूं, साले पैसे पहले तो बचने चाहिए फिर उसका पर्सनल फाइनेंस करूं मैं। ये घर के खर्चे पे उड़ जाते हैं सारे पैसे यार। अब मैं भी ऐसे ही नहीं करता, घर घर पे ही उड़ जाते हैं मेरे सारे पैसे। क्या कर। और इन्वेस्टिंग भी कैसे, मतलब 1.5 लाख रुपए में कौन इन्वेस्टिंग कर सकता है? इन्वेस्टिंग एक रिच पर्सन का गेम है, ध्यान के रखो भाई। और ये कोई नहीं बताने वाला, सब सब आपको वही सारे म्यूचुअल फंड्स वाले, सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर यही बता देंगे हाँ आप भी बन सकते हो, वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, आप भी बन सकते हो।
बट सच बात यही है भाई, ये रिच पर्सन गेम। बड़े पैसे से ही बड़ा पैसा बनता है। ये हम 10-20 हजार का SIP, इससे कुछ नहीं होगा। ये आपको सुन के बुरा लगा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दैट्स द ट्रुथ। दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक, एंड इन सब का वीडियोस में वो कभी आता ही नहीं है, वो बात कभी बोलेंगे ही नहीं आपको। अगर आप एक दिन वो आके बोल दिए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, तो उनका चैनल देखेगा कौन? रिच एंड एफ्लुएंट क्लास देखेंगे, उनका क्या है, उनके पास है पैसा, इन्वेस्ट करने दो। बट जो जो एस्पिरेशनल क्राउड, जो हमारा इंडिया का बैकबोन है, जो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतना इतना जाके हम वर्ल्ड स्टेज में चिल्लाते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये वो है, वो इंसान कैसा करेगा ये सब चीज? ये सिर्फ बातें बनाने की बात। सो चलो, समझो, मच ऑफ माई रेंट, नथिंग यूजफुल हियर, लेट्स गो। आपको थोड़ा आपको थोड़े फालतू फालतू चीज मैं बताता रहूंगा ऐसे मिडल, बट बेयर में। Do I sell personal finance course? The short answer is no. I do not, because ये फालतू के course मैं नहीं बेचता. I sell like good courses which are actually ROI oriented. Okay, so this is the first type of investing, which is called as money management. The second type of investing is called as asset class investing. For example, if you are an equity person and you mostly invest your money in equities, then which asset class are you investing? You are investing in equities. So this is called as asset class based investing. For example, Rakesh Jhunjhunwala ji हो गए, आपके राधा कृष्ण धमानी जी हो गए, they all became rich by doing equity investing. Similarly, you have real estate investing. People who only do real estate investing, one could argue that maybe Hiranandanis will fall into this domain, Donald Trump might fall into this domain. So they are doing asset class investing. The third type of investing is called as diversified investing. Diversified investing means कि आप across asset classes कर रहे हो, you are investing across international borders. So आप इंडिया में भी करते हो, दुबई में भी करते हो, वगैरह वगैरह. Now when to go there, I will cover that on the video. लाइक इतना सारा बात हो गया है, इन्वेस्टिंग अक्रॉस एसेट क्लास, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, सर ने बता भी दिया डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया, सर के पास एग्जांपल्स थे इक्विटी में इन्वेस्ट करके, राकेश झुनझुनवाला जी या फिर राधा कृष्ण दमानी जी, उन्होंने पैसे बनाया। रियल एस्टेट में सर ने बताया कि हीरानंदानी है, रघुवेंद्र सिंह है DLF के, और ओबरॉय रियल्टी का है, कितने सारे हैं। बट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग में किसी का नाम दिया, किसी का एग्जाम्पल दिया? यही प्रॉब्लम है। लाइक आप ये सब क्वेश्चंस पूछिए, पूछोगे नहीं तो ये लोग उसका जवाब भी नहीं देने वाले कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग से किसी का पैसा बना है अभी तक? अगर बना है तो प्लीज एग्जाम्पल दीजिए, कैसे उन्होंने बनाया वो बताइए। वो नहीं होगा, इस वीडियो में सब कुछ है लेकिन वो नहीं, वो नहीं बताया वो। अरे होगा, फैक्ट्स होंगे तब तो बताएगी ना। किसी ने भी ऐसे पैसे नहीं बनाए। अभी मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट दैट्स द ट्रुथ मैन। आप जाओ, आप जाके जितने, अगर एक दो आप देखो, अभी मैं बोलूं कि एक्सेप्शंस हर जगह किसी ने बना लिया होगा डाइवर्सिफाइड, बट ओवरऑल आप जाके देखो ना, निफ्टी, निफ्टी बोल रहा हूँ, फोर्ब्स का बिलियनर लिस्ट देख लो, कहीं पे भी देख लो, आइदर किसी इंसान ने एक चीज से कमाया है, वहां से पैसा जब बनाया तो डाइवर्सिफाई कर लिया है अपने। बट कोई ऐसा जाके बोलता नहीं है कि मैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग करके मतलब जो सर का क्लेम है 100 करोड़ का पोर्टफोलियो। आई डोंट नो मैन। चलो चलो, मैं बहुत ही ज्यादा ये हो रहा हूँ, चलो इमोशनल हो जा, चलो। आई जस्ट हेट दिस डाइवर्सिफिकेशन। नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कुछ नहीं है ये, जस्ट मैं अपने फीलिंग्स बता रहा हूँ। ये कोई पर्सनल फाइनेंस या फिर इन्वेस्टिंग का वीडियो भी नहीं है, ये तो रिएक्शन वीडियो है। मजे कर रहे हैं आप। चलो चलो, डोंट टेक माय वर्ड सीरियसली, ओके? कि यार अभी तो मेरी तनख्वाह कम है, आई ओनली मेक लाइक 20-25,000 एंड अक्षत इज सेइंग कि इन्वेस्ट अक्रॉस बॉर्डर. नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम पुशिंग. व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज कि देखो यार, यू विल लर्न थिंग्स विद एक्सपीरियंस. इट्स नॉट एज इफ कि जब आपके पास 50 करोड़ आ जाएंगे देन आई विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट डिफरेंट एसेट क्लासेस वगैरह वगैरह. नो, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू. यू विल लर्न थिंग्स विद एक्सपीरियंस. स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में ही होती हैं चीजें. अब ऐसा थोड़ी था कि यू आर 25-26 नाउ, यू हैव टू राइट एन ईमेल टू योर बॉस. सो आपने इंग्लिश लैंग्वेज आज सीखनी शुरू करी? द आंसर इज नो. यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू वर probably in like nursery or something, right? So what I'm trying to tell you. देखिए, सर ने बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दे दिया, बट एक चीज आप जानो कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। लाइक एजुकेशन, वो पैसा भी मम्मी पापा ने दिया एजुकेशन के लिए, ठीक है? आप अगर इंग्लिश सीखना भी चाहे, कोई इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा कैपिटल अमाउंट डालना नहीं। बट इन्वेस्टिंग अक्रॉस एसेट क्लासेस, अगर भी आप जा रहे हो, एक मीनिंगफुल पैसा भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं इन्वेस्ट करूँ, लेट्स जस्ट से आई हैव लाइक 1 लाख रुपीज,
1 लाख रुपए में मैं डाइवर्सिफाई करूँ, पहले तो मैं स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कर चुका हूँ, फिर उसके बाद मैं वैसी 1 लाख से और 2-3 एसेट क्लास में जाऊँ। क्या बात है भाई। आप क्या मीनिंगफुल पैसा बन जाएगा आपका 100 टाइम्स, बट कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 50,000 का 100 टाइम्स कितना होता है? 50 लैक्स। कितने साल में बनेगा वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। इतने बनाने के लिए क्या है भाई? 100 टाइम्स में है ना, 50 लैक्स नहीं, 100 टाइम्स। आप जाके देख लो, जिसने 100 टाइम्स एक बार में बना है ना, उसकी जिंदगी चेंज हो जाए। बट वो चीज यहाँ पे नहीं बताया जाएगा ना, आपको तो सच कभी बताया ही नहीं जाएगा। ऐसे ही वीडियोस बनाया जाएगा। आप आप आके बढ़िया बढ़िया यूट्यूब के 500-600 की व्यूज दे दोगे, 1 मिलियन व्यूज दे दोगे, और आपको तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, नहीं, आप आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर, जस्ट सेइंग। माय गॉड, फेमस करा दो, फिर उसके बाद गुस्सा नहीं करूँ। Is that same goes for investing, that if you want to become a good investor across asset classes, you have to spend years or probably decades learning about it. So this is point one, and the reason why this will help दैट्स you द get. पॉइंट ना, लाइक एक एसेट क्लास को मास्टरी करने के लिए आपको अगर डिकेड्स लग रहा है, आप 2-3 एसेट क्लास में मास्टरी कब करोगे? और अगर अगर मास्टरी कर भी ले, पैसा कब? वही बात है भाई। मैं नहीं बोलूँ, लाइक एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कीजिए, सब कीजिए, मना नहीं कर रहा, बट आपके पास कैपिटल है, वो मीनिंगफुल कैपिटल है पहले। नहीं है तो क्यों कर रहे यार? क्यों इतना ये कर, अपने ऊपर लोड लिया? आराम से बैठो ना घर पे और इन्वेस्ट करो। जो आपने जिस चीज पे पैसा बनाया, उसी चीज पे बनाओ। ज्यादा इधर उधर का मत देखो। लाइक वही बात है कि लोग फोमो में आके कुछ भी करने लगते हैं कि इधर जाओ, उधर ये इन्वेस्ट कर लो, वो कर लो, उसने उतना कमाया। अरे उसने उतना कमाया, जिसने कमाया, जो कमाया अच्छा है, गुड फॉर हिम। बट आपके लिए क्या सही है वो देखो। आपको अगर लगता है कि ये करने से आपका पैसा बन सकता है, तो वही कीजिए। बातें बनाने के लिए मैं हजार चीज आपको बोलूँ कि आप इन्वेस्टिंग इसमें क्यों कर रहे हो, करेंसी में कीजिए। करेंसी में तो जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी नीचे गिरा दिया और अपना पूरा वेल्थ वहीं पे बना दिया, शॉर्ट कर करके। वो भी कर लो। ऐसा वही बात है कि आपका कन्विक्शन अगर नहीं है, तो ये सब करके कुछ मिलने नहीं वाला। To that 100 crore is that it would allow you to explore good buying तो opportunities. मैन, आप जो बोल लो, ये सब करके नहीं होने वाला। ये सब करके नहीं होने वाला 100 करोड़। 100 करोड़ मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा 100 करोड़ क्यों नहीं होगा। Across asset classes. So then comes step number two, that first you should start learning about equity investing. Now what is the meaning of equity investing? Equity investing का मतलब होता है कि आप stocks खरीद लेते हो, जरूरत है आप stocks वगैरह पे जाके. Now why am I saying that equity investing is something that you should prioritize at the early part of your career? It's very simple. The first key reason is that it's fairly easier to make 12% returns in equity. अब कई लोग शुरू हो जाएंगे कि कैसे 12% कैसे बना लोगे, ये वो। भाई बहुत सिंपल है, राइट? ऑल यू डू इज यू डू इंडेक्स इन्वेस्टिंग, खत्म, आपके बन जाएंगे 12%. इफ यू आर होल्डिंग द इंडेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, यू विल ऑलमोस्ट विद गारंटी मेक 12% प्लस CAGR, खत्म बात। ओके, नाउ इज 12% गुड बैड, ये सब बात की डिस्कशन है, बट आई होप दैट द पॉइंट अबाउट मेकिंग 12% is clear to everyone. It's very easy to make. Okay, second key point about equity investing is that it is liquid in nature. Liquid का मतलब होता है कि आप मान के चलो कि आज आपके पास 10 लाख रुपीस के शेयर्स पड़े हुए हैं. Now how soon can you sell it? Well, you can literally go tomorrow if the market is open, you can sell it and get the money there is fairly quickly. This is very different from real estate, that in real estate कई बार या liquidity. दिस इज द प्रॉब्लम ना, लाइक रियल एस्टेट इज वेरी लिक्विड। सो ये देख लो, ये वीडियो पूरा फुल ऑफ दीस कॉन्ट्रडिक्शंस है। लाइक स्टार्टिंग में सर ने बोला एस्टेट में इन्वेस्ट करो, फिर पता बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में फिर करिए, रियल एस्टेट में नहीं होता पैसा। क्यों बोल रहे हो भाई? तो बोलो ना कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना लो, फिर आओ रियल एस्टेट में। और फिर इस वीडियो में वो भी बोलेंगे कि अमाउंट भी बोलेंगे कितना अमाउंट, बट वो अमाउंट सुन के ना आपको भी लगेगा कि ये क्या बता। देख, सच्ची में ये हो सकता है क्या? मुझे मुझे तो नहीं लगा हो सकता है, आपको अगर लगा हो तो अलग बात। यू आर मोर एजुकेटेड देन मी, माय ऑडियंस। आई एम वेरी लिटरेट। चलो।
नहीं होती. Even if your price of the property has appreciated, it's very difficult to exit it many a times. So that could be considered as an illiquid investment. तो अब नेचुरल सवाल आएगा कि भाई हम रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचे. ओके, आपका उसका भी जवाब मिल जाएगा further in the video. Third is that stock investing is fairly simple. People have made it over complicated कि FNO भी कर लेंगे. हाँ, सिंपल है। हाँ, स्टॉक इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, इसीलिए तो आप पेड कोर्सेज बेच रहे हो अपने साइट पे। लाइक व्हाट द हेल मैन, ये आयरनी नहीं है? लाइक इंसान बोल रहा है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग सिंपल है, और फिर जाके विजडम हैच एक अपना डॉट कॉम बनाया है, जहां पे उन्होंने अपना कम्युनिटी भी बनाया है, जिसके साथ वो पेड, फ्री कोर्सेज भी नहीं, पेड कोर्सेज दे रहे हैं। ये क्या है? fucking इंट्राडे भी कर लेंगे, स्विंग ट्रेड भी कर लेंगे, दुनिया भर की. हाँ, सुनिए सुनिए, अगर मैं बोलूंगा ना, वो बेटर है, इंट्राडे स्विंग ट्रेड वो कर लो। क्योंकि आप बोल रहे हो इन्वेस्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस, उसमें कौन सा बड़ी बात हो, उसमें तो और चीजें घुस जा रही है। ये तो एटलीस्ट उसे कुछ तो पता होगा, इक्विटी में अगर इन्वेस्ट किया है तो इंट्राडे क्या है या फिर एफ एंड ओ क्या है, कुछ तो पता होगा उसको। इस चीज में तो कुछ नहीं पता, उसमें आप जाके बोल रहे हो महारत हासिल करो। ये सच्ची बात है भाई, क्या। छोड़। 500 चीजें कर लेंगे. नो, प्लीज डोंट गेट इन टू दैट. स्पेशली इफ यू आर एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, फोकस ऑन फर्स्ट ग्रोइंग योर एक्टिव इनकम and then focus on creating a simple investing style that. ये पॉइंट भी मुझे बहुत लाइक पता नहीं, तो मेरे को बड़ा खलता है कि एक्टिव इनकम ग्रो कर। ठीक है, एक्टिव इनकम ग्रो करें। इंडिया में वही तो प्रॉब्लम है ना। लाइक हमारा इन्फ्लेशन से कम हमारा सैलरी हाइक होता है। इंसान अभी अगर रिसेशन पीरियड में जॉब चेंज नहीं कर सकता, फिर पता नहीं क्या कुछ है, अगर प्रॉब्लम हो गया तो वहां से निकाल दिया जाता है अपने जॉब से। और आप भी देखोगे ना कि एक्टिव इनकम बढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आपको ले आते हैं सीटीसी पैकेज पे, सीटीसी कॉस्ट कंपनी पे। वो पैकेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इन हैंड सैलरी नहीं बोलता, वो आपके ऊपर कंपनी कितना खर्च कर रही है वो बता। तो अगर भी आपका सैलरी लेजर से 10 लाख से आपका सीटीसी 10 लाख से 1 करोड़ बन भी जाता है, उसमें भी आपका सैलरी कितना मिलता है आपको, जितना मुझे पता है। आई मतलब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे जितना पता है, मेरे दोस्त लोग जितने काम करते हैं, बड़े बड़े एमएनसी है, उनको उनका भी 1 करोड़ का पैकेज ऐसे गिरता है। तो वो लोग भी ऐसे जस्ट लाइक, मतलब उनका अगर सैलरी इन हैंड पूछो तो वही 2.5 3 या फिर 4 5 लाख ही होता है। जब आप सीनियर मैनेजरियल रोल पे जाते हो तब थोड़ा ज्यादा हाइक आता है, बट 1 2.5 3 लाख से ऊपर, मतलब इंसान शायद से 35 36 का हो जाता है, तब तक उसको उससे ऊपर नहीं मिलता। और अगर भी मिल जाता है, एक सीलिंग होता है, उससे ऊपर आप बहुत ही कम जा सकते हो। ठीक है, एक्टिव इनकम बढ़ाओ, बट एक्टिव इनकम ऐसे मतलब ऐसे इजी भी नहीं है ना एक्टिव इनकम बढ़ाना। तो एक्टिव इनकम का सोल्यूशन क्या है? कि आप क्या करो, वो चीज भी बताओ ना, कैसे वो एक्टिव इनकम को अच्छा करो। ये खाली एक्टिव इनकम बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ भाई? कुछ तो होना चाहिए ना, लाइक कोई तो वो ये होना चाहिए, एक्टिव इनकम बढ़ाओ। ये एक्टिव इनकम का बात ना हर जगह मैं सुन लेता हूँ, एक्टिव इनकम बढ़ाओ। अरे एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाओ? कुछ तो ऐसा सोल्यूशन दो एक्टिव इनकम का बढ़ाने के लिए। लेकिन आई डोंट नो मैन, मैं तो नहीं बढ़ा पाया हूँ अपना एक्टिव इनकम, तो मैं आपको क्या बताऊँ। You can execute very easily. Ab the kahani is that you should start worrying about optimizing your returns once you have hit that 25 lakh of liquid money. अब ये मेरा 25 लाख वाला जो पॉइंट है, ये मैं कहाँ से ले आया? 25 रैंडम नंबर तो नहीं है, नहीं. Now there is a math behind it. For example, according to me, if you start learning how to grow your money at 15% CAGR in the stock market, your life will change. There is a huge difference between. नो, 15% सीएजीआर करने से किसी का लाइफ चेंज। सॉरी, सॉरी फॉर बस्टिंग योर बबल, बट किसी का चेंज नहीं होता। ये सिर्फ देखो भाई, ये सिर्फ बनाई बनाई बातें। 15% सीएजीआर से ग्रो कर लो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होता चेंज भाई। 15% सीएजीआर में भी कितना घोल झोल होता है, भगवान ही जाने। ये नंबर, ये सच में, ये 15% सीएजीआर का नंबर ना, ये इंडिया में बढ़िया बढ़िया, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये सब फाइनेंशियल में बढ़िया बढ़िया पेल के पूरा इसको बोल दिया है। 15% सीएजीआर कर लो, ठीक है। निफ्टी 12 देता है आपको 15, अगर आप 15 करते हो तो आप लाइफ चेंज। ओके ठीक है, मैं इसी इसी वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं होता।
इन मेकिंग मनी एट 12% और ग्रोइंग योर मनी एट 12% वर्सेस 15%। मैं थोड़ी सी आपको मैथ बताता हूँ, आपको मजा आएगा। देखो, देर इज अ रूल ऑफ 72। तो 72 को आप x से डिवाइड करो, वट एवर इज योर टारगेट रिटर्न, दैट टेल्स यू हाउ मच टाइम डज इट टेक टू डबल योर मनी। सो इफ यू आर growing your money at 15% CAGR, your portfolio doubles roughly every 4.6 years. Okay, so ये मैथ निकल के आती है। Okay, if you are growing at 12 CAGR, then आपको कितना टाइम लग जाता है? आपको 6 years लग जाते हैं अपना पैसा डबल करने में। Yes, it looks like only 3। मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान ने अपना पैसा डबल किया 4.5 साल में, दूसरा इंसान ने अपना डबल किया 6 साल। 1.5 साल जल्दी दूसरे इंसान ने कर लिया अपना पैसा डबल, बट पैसा डबल ही हुआ है, 10x नहीं हुआ है, 20x नहीं हुआ है। तो ये जो चीज है ना, ये मतलब लाइक रूल ऑफ 72 ना, मैं आपको फेंकने के लिए बहुत सी चीज फेंक सकता हूँ, लाइक जो जो आप कभी सुने नहीं होंगे, बट मूल्य बात यही है, पैसा बनना चाहिए। लाइक हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्यों? हाँ, बिकॉज हम सबको 100 करोड़ चाहिए भाई। मुझे तो चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए भाई। और नहीं रहना भाई, गरीब नहीं रहना भाई, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, यूट्यूब चल जाए भाई, अगर चला दो आप, आपकी दया से अगर चल जाए, प्लीज, आई विल मेक बेटर रिएक्शंस। ठीक है, चलो। नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं भाई। 15% और 12% में ज्यादा से ज्यादा आप एक एक्स्ट्रा, लाइक एक नया गाड़ी खरीद सकते हो, या फिर कुछ कुछ चीजें ऐसे ही जो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऐसे कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंड कर सकते हो। उससे ज्यादा आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता। वही सेम आप बता, इसी इसी वीडियो में बताऊंगा। 3% difference, but there is a huge difference between the two. नहीं Let me होता है। highlight the math also there by taking you to an SIP chart. उससे आपको at least power पता चलेगी that what is the difference between growing your money at 12% and 15%. So ये मान के चलो कि by the time you are 30, 35, you have created a wealth of 25 lakhs. अब उसके बाद तो आप यार आराम से 25,000 की SIP तो कर ही सकते हो, 25,000 SIP. And if you are 30, then you will at least invest till like 70, I would say. So इसको आप कर लो 40, okay? ओ And 12% भाई, पे if you keep on growing index हाँ, investing कर करके, then your portfolio size becomes how much? It becomes 29 crore. Okay, अब मैं इसको 15 करता हूँ। Okay, that's the only thing that I'm changing and the number magically changes to 78 crores. So आपका आधे से भी कम हो गया portfolio if with the difference of 12 to 15%. Okay, so 3% वो सुनने में 3% लगता है, but that's a ये जो रुक जाइए, कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर है ना, ये जो एसआईपी कैलकुलेटर ग्रो ग्रो का है, ग्रो का है, मोस्ट डिवाइसिव, मोस्ट फेलेशियस इन द सेंस कि मोस्ट फॉल्टी, फैंसी टर्म्स अगेन, ओके, सुनिए, सबसे ज्यादा ये फॉल्टी चीज है, क्योंकि ये